معاہدے پر دستخط عمل درآمد شروع شرم الشیخ میں خصوصی تقریب 40 ممالک امریکہ قطر اور ترکی کے صدور اور امیر قطر نے معاہدے پر دستخط کی. دستخط ہوتے ہی کانفرنس ہال تعلیم سے گونج اٹھا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج پوری دنیا کے لیے اہم دن ہے. مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا, غزہ میں ترقی آئے گی. مصر کا کردار قابل تعریف ہے. صدر ٹرمپ کا مصر کے صدر سے اظہار تشکر بہترین انسان قرار دے دیا. مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ کا خصوصی ذکر. وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ امید ہے پاکستان اور بھارت اب آرام سے رہ رہے ہوں گے. ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا بھی خصوصی ذکر کرتے ہوئے انہیں اپنا بہترین دوست قرار دیا. اسرائیلی رحمانیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہا ہونے والے فلسطین کا مغربی کنارے پہنچنے پر شاندار استقبال. جذباتی مناظر. اسرائیل نے ارفو جیل سے 1966 فلسطینیوں کو رہا کر دیا. حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کیے. پہلے مرحلے میں 7, دوسرے مرحلے میں 13 یرغمالی حوالے کیے. 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم. کہا کہ کیمپ بندی معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا. غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کو امن کا حقیقی علمبردار کہتے ہوئے ڈوبل انعام دینے کی درخواست کر دی. کہا صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا. امریکی صدر کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہوا. آج سخت محنت کے بعد غزہ میں امن کے لیے کامیاب ہوئے. معاہدے سے لاکھوں جانیں محفوظ ہوئی ہیں. ٹرمپ کی خدمات قابل ستائش ہیں. امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مختصر ملاقات. دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کیا. مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم مصر اور آذربائیجان کے صدور, آرمینیا کے وزیر اعظم, اردن کے شاہ عبداللہ دوئم, بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے بھی ملے. وزیر اعظم کی انڈونیشیا کے صدر, جرمن چانسلر, اسپین اور اٹلی کے وزرائے اعظم, سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے بھی ملاقاتیں. غزہ معاہدہ دنیا کی غیر معمولی کامیابی. مشرق وسطیٰ میں جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہے. اسرائیل جیت گیا ہے. غزہ پین خطرہ بننے والے حماس کا مکمل خاتمہ ہے. توجہ اب تعمیر نو کی طرف ہونی چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب. اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعادہ. ہزاروں فلسطینی کے قاتل نیتن یاہو کی تعریفیں. کہا مشکل وقت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا. نیتن یاہو کو قائل کرنا آسان نہیں تھا. اسرائیل نے وہ سب کچھ جیت لیا جو طاقت کے بلبوتے پر لے سکتا تھا. صدر ٹرمپ یہ بھی بولے کہ غزہ سے ایران تک نفرتوں نے مصیبت, دکھ اور ناکامی کے سوا کچھ نہ دیا. امریکہ نے 14 بم گرا کر ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا. ایران کے دوستی اور تعاون کے دروازے کھلے ہیں. خطے کے تمام ممالک کو آپس میں دشمن نہیں ہونا چاہیے. فلسطینی اب تشدد کی جگہ امن کا راستہ چن سکتے ہیں. صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران اسرائیلی پارلیمنٹ کے 2 ارکان کا احتجاج. امریکی صدر حیران اور پریشان ہو گئے. سیکورٹی اہلکاروں نے شور کرنے والے رکنگ کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا. صدر ٹرمپ کی سیکورٹی اہلکاروں کی تعریف. ارکان حکومت کی بزدلانہ اور بلا اشتعال کارروائی کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے 12 شہدا کی نماز جنازہ. چکرالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا کی گئی. آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, وفاقی وزیر گورنر خیبر پختونخوا, اعلیٰ سول اور فوجی افسران کی شہریوں کی شرکت. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ قوم کے ہیروز نے وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کی. طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. پاکستان کے عوام اپنے ہیروز کی عظیم قربانی کی مخلوق ہے. پر یہاں تک پہنچاؤ, محنت کر کے پہنچاؤ, ہر چیز سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے. اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا, پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تصدیق کی, نام کے ساتھ ایک بڑا سا
शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता। सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी। सुहेल आफरीदी नवे वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पहले खिताब में कहा कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, मकामी लोगों के एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, हमें मज़ाक़ात का रास्ता अपनाना होगा। कहा कि पर्ची से नहीं, मेहनत से वज़ीर आला बना। मेरे नाम के साथ भुट्टो जरदारी या शरीफ नहीं। कोई न सोचे कि शाहाना ज़िंदगी देख कर अपने मकसद से हट जाऊँगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और मेरे पास खोने को कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दो, छोड़ दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आला ने बानी पीटाई और दीगर अफसरान की रिहाई के लिए आज से ही इक़दाम करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बाइकआउट, शदीद नारेबाजी, ईरान से वॉकआउट। अपोजिशन के इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर बाबुल्ला का कहना है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। हम अब भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला समझते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या हमें लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुगरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो। हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दो, तारीखी हरब इस्तेमाल न करो। मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब। कहा मुल्क में जमहूरियत और मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। गवर्नर को इस्तीफा दे दिया, अपने दौर में सूबे का खजाना भरा। मेरे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं है। जद्दोजहद जारी रखेंगे, बानी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुल्ली ने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूँ। इत्मीनान मेरा आईनी हक है। अली अमीन खुद को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। हुकूमती वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का बरामद। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार गैर आईनी करार। इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर एज़म इक़बाल, आज़म नज़ीर तारब और जूनियर अमीर मकाम शामिल थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खत की कोई दायमी हैसियत नहीं है। फैसल करीम कुल्ली को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सीनेटर बैरिस्टर अली जफर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाब नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगा तो वही वज़ीर आला मुस्ताफी होगा। अदालत में अपोजिशन एतराज़ है तो यहाँ पर दलाइल दे देंगे। पीटर अहमद जुनैद अख्तर का कहना है कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफे पर एतराज़ की कोई आइनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पेशावर हाईकोर्ट से रिव्यू। चीफ जस्टिस को नामुंतखब वज़ीर आला की हाउस पर दायर के लिए किसी का नामजद करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा के दलाइल बताया कि अली अमीन गंडापुर ने 8 और 11 अक्टूबर को इस्तीफे दिए। क्या गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया? चीफ जस्टिस के सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले कि इस्तीफा मंजूरी की जरूरत नहीं है, जब दिया गया तब से ही नाफिज हो चुका। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को आज सुबह तक का वक्त दे दिया।
एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला कैसे आ गया? खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का जाली इंतखाब। सुहेल अफरीदी सिफारशी नहीं, फर्शी वज़ीर आला है। असम्बली में बढ़ के लगाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सुहेल अफरीदी की बातों पर हंसी आई है। कुछ लोग सिर्फ बात नहीं कर सकते हैं। सुहेल अफरीदी ने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। पाक फौज की तरफ से मौसर जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर आला का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। चीखें पंजाब से सुनाई दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटर के एक फैसले ने सियासी मुखालिफिन पर खौफ तारी कर दिया। सुहेल अफरीदी की कामयाबी ने मरीम नवाज और उनके हवारी की नींदें उड़ा दी। जहाँ से दहशतगर्दी होगी वहाँ कमीनगाह को तबाह कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के नशीर सेनेटर राना चावला का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया गया। अगर कोई कमीनगाह बच गई है तो उसे भी तलाश करके तबाह करेंगे। दरअंदाज हो तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। जीटी रोड मुल्क के ट्रैफिक के लिए बहाल। मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई है। लाहौर के दाखिल और खारजी रास्ते भी खुलने लगे। शहर की कई सड़कें बहाल बंद है। मोटरवे 2 और 3 पर ट्रैफिक बहाल न हो सकी। कई मकामात पर ट्रैफिक बंद है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। एम्बुलेंस को भी रास्ता न मिल सका। टोकर नवाज से बाबू साबू भी ट्रैफिक निजाम मअतल। शहर इब्तिदार इस्लामाबाद की बड़ी शाहराहें बंद। फैजाबाद इंटरचेंज वज़वी तौर पर बहाल। शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव मामूल से ज्यादा। मेट्रो बस सर्विसेज शुरू न की जा सकी। मजहब के नाम पर मसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं कि 2 साल गाजा में ज़ुल्म और खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक बढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरत और तकसीम खत्म करें। दुनिया और आखिरत सवार है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद एहतजाज और नारेबाजी। एजेंडा मुलतवी करने का मुतालबा। अपोजिशन एहकाम सीटों से उठकर शोर मचाते रहे। मसौदे की कॉपियाँ हवा में उड़ा दी। शोर शराबे के बावजूद मसौदा कानून की मंजूरी दे दी गई। बिल सूबाई वज़ीर बल्दिया अब्दुल रफीक ने पेश किया। नए बिल के तहत पंजाब में यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल। लाहौर जिला मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार। 7 लाख से ज्यादा आबादी के इलाकों में टाउन कॉर्पोरेशन कायम होंगी। 22 से 35 नफूस पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स इलेक्शन लड़ेंगे। खातून, यूथ, लेबर और अकलियती काउंसलर्स की 4 मखसूस नशिस्तें शामिल होंगी। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करते हुए बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना जरूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा-ए-खान से गुफ्तगू। रायबरेली इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। रायबरेली जाने वाले रास्ते पर फौरी कैशवर का हुक्म। कहा कि खिदमत का जज्बा सच्चा है। अल्लाह ताला गैर से वसाइल मुहैया करेगा। सोने की कीमत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी है। फी तोला कीमत में 5,500 रुपये का इजाफा। नई कीमत 4,28,200 हो गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये इजाफे से 3,67,112 रुपये हो गया। आलमी बाजार में फी सोने का भाव $55 पर गया।